Hello guys, I'm back after a long time and I have got the reason I'm back is some junior asked me ki, what is PMR, they want to know what is PMR and they want to know what is PMR and हम लोग करते क्या है PMR में and who should be opting for it and who should not opt for PMR. Few people are interested to know about it and they wanted me to do a video, so this video is about it. So basically PMR एक स्पेशलिटी ब्रांच है जो हम MBBS के बाद करना होता है. And here what the PMR doctors are also known as physiatrists. So what a physiatrist aim to achieve is we aim to enhance, we aim to restore the quality of life and the physical ability of a person to the maximum capacity. So the kind of cases that we usually come across in PMR are from head to toe. अगर मैं बात करूँगी तो it starts from the neurological cases like stroke, traumatic brain injury, फिर spinal cord injury, and spinal cord injury can be because of various other causes like even traumatic, non-traumatic जो ट्यूमर के वजह से हो जाता है, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, या फिर एक्सीडेंट के बाद जो ट्रॉमेटिक वाला छत से गिर गए उसके बाद जैसे हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैराप्लेजिया, या फिर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन लाइक टीबी, पॉट स्पाइन वगैरह. ये सब केसेस जो है ये हम देखते हैं. एंड दिस बिसाइड्स दिस अदर केसेस लाइक न्यूरोपैथी जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर हो गए, फिर लेप्रेसी, फिर एनी नर्व इंजरीज़ के बाद क्लो हैंड, फुट ड्रॉप, फ्लेल फीट वगैरह, मतलब जो भी नर्व इंजरीज़ के बाद जो डिफॉर्मिटीज़ आ जाता है, वीकनेस आ जाता है, या फिर मायोपैथीज़ कॉन्जेनाइटल, फिर एनी अदर एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ मायोपैथीज़ जो भी है वो सब हम देखते हैं. एंड ऑल्सो पेन इज़ वन कंपोनेंट वे फिजियाट्रिस्ट ऑल्सो प्ले अ बिग रोल. ठीक है. सो व्हाट वी डू इन ऑल दिस केसेस इज बिसाइड्स द वीकनेस, जैसे कि मैंने बताया पैराप्लेजिया एंड हेमीप्लेजिया, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वगैरह. तो बिसाइड्स द वीकनेस we also focus on other once you learn the subject you'll come to know that when a person is affected by affected due to a traumatic brain injury, a stroke, a spinal cord injury, you'll find that it also affects not just the muscle, but it also affects the whole system like the respiratory system, the GI system, the gastrointestinal system, the bowel bladder function, the sexual dysfunction, and also sequelae complications like the vein thrombosis, या फिर पेन, न्यूरोपैथिक पेन वगैरह. So there are multiple things that a person faces when they have such injuries. So we, of the physiatrists, we try to help the patient in all their difficulties in starting a new life. ठीक है. But PMR में I'll tell you something कि ये एक तो this subject was not taught during our undergraduate days, so we have a little idea about the subject and the cases that we deal in PMR. So if you look at so if you're interested in doing PMR, I'll tell you something कि आप जब interested होते हो then you also have to notice कि आपको किस में ज़्यादा interest है, because PMR will deal with a lot of variety of things, and the patient load is also काफ़ी different from east north, east west, साउथ नॉर्थ. ठीक है. जैसे कि आई डिड माई MD फ्रॉम रिम्स नॉर्थ ईस्ट. सो रिम्स में जब मैंने अपना MD किया था वी हैड अ वैरायटी ऑफ केसेस, स्टिल द मेजर चंक्स वे डोज ऑफ पेन. ठीक है. सो लाइक पीपल विद मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, पेन, लो बैक एक, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क. तो ये सब पेन के जो कंपोनेंट्स, मतलब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स या पेन जो हैं, ये चंक्स काफ़ी ज़्यादा थे इन रिम्स. ठीक है. ऑल्दो we were also exposed to spinal cord injury, stroke, etc., but still the major chunks were pain. And leprosy cases या post polio cases, this are very rare. Like in during my tenure presidency, I think I got to see around only 2 or 3 max of polio and leprosy cases. So like ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, but when you happen to go outside
जैसे कि आई डिड माई एसआरशिप फ्रॉम एम्स दिल्ली. सो मैं जब एम्स दिल्ली में गई देन आई गॉट टू सी लाइक ओपीडी में एवरी ऑल्टरनेट पेशेंट ऑलमोस्ट हैड post polio was very common. Post polio cerebral paralysis was very common. Then Clohan, diabetic foot ulcer, leprosy के cases, this were very common. And spinal cord injury due to various causes, pot spine के वजह से, tumor के वजह से, या इवन ट्रॉमेटिक बोन कंप्रेशन हो गया, छत से गिर गए, टूट गए, एक्सीडेंट्स के वजह से. सो ट्रॉमेटिक नॉन ट्रॉमेटिक इक्वली वेरी कॉमन in AIMS New Delhi, but the only disadvantage of ये AIMS Delhi is that the beds are limited, and also the inpatients में majority were only spinal cord injury and cerebral palsy, stroke थोड़ा बहुत वैसे एडमिशन होते. although इन पेशेंट्स में वैरायटी थोड़े कम है, बट देन ओपीडी में यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स. ठीक है. सो ओपीडी में आप जो केसेस देखते हो यू कैन रीड अप एंड देन यू कैन लर्न. ऑल्दो लाइक इवन दो आई से कि वो केसेस काफ़ी फ़र्क है. द रीज़न वाई एम सेइंग काफ़ी फ़र्क इज़ बिकॉज व्हेन यू चूज़ एन इंस्टीट्यूट, मेक श्योर कि आप जिस पे इंटरेस्टेड हो वो एडिक्वेटली आपको मिल जाए वहाँ पे. जैसे कि अगर आपको पेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है देन यू कैन ऑप्ट फॉर रिम्स या फिर एम्स जोधपुर, जहाँ पे या फिर कोलकाता वाले कॉलेजेस जहाँ पे पेन के जो प्रपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड इंटरवेंशंस काफ़ी वहाँ पे कॉमन है, पेन इंटरवेंशंस. ठीक है. बट देन इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजिकल केसेस देन यू कैन ऑप्ट फॉर एम्स न्यू दिल्ली या फिर SMS जयपुर, CMC वेलर. ये सब पे आप चूज़ कर सकते हो बिकॉज ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स द patient majority of them are neurological cases. But even though ये सब है but still आपको PMR जाने के लिए you still have to learn all these cases despite the varying the variety cases पे जो varieties है उसके बावजूद भी आपको you still have to learn all these things whether you get these patients in your OPD or not. ठीक है. ठीक है. द प्रोज ये है कि इसमें इमरजेंसी केसेस काफ़ी कम होते हैं. सो देयर इज़ अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. यू कैन गिव इक्वल टाइम टू योर फैमिली, योर पार्टनर, एज वेल एज इक्वल टाइम टू योर जॉब, योर वर्क. ठीक है. इक्वल बेसिकली 9 to 5 मैक्सिमम 6 तक जॉब है. 9 सो हॉलीडेज पे आप प्लान कर सकते हो अपने फैमिली के साथ घूमना फिरना, ट्रिप एंड ऑल यू कैन प्लान. बट दी क्या कॉन्स ये है कि बिकॉज इमरजेंसी केसेस आर वेरी लेस. सो इफ़ यू आर somebody who is interested in tackling emergency situations and you know the adrenaline rush of being a doctor and all what's up, then you might find this branch a little boring. ठीक है. आपको लगे कि कर क्या रहे वैसे. I have also felt that majority of the juniors जो लोग पहले जानते नहीं थे कि what is PMR, so when they come to this branch they feel कि थोड़ा बहुत boring है, you might feel. So this is a harsh truth but this is a reality जो majority face करते हैं. ठीक है. and plus people still, even doctors, they're still not very well acquainted with this branch, so they consider us and physiotherapists equal, so they cannot differentiate कि करते क्या है, like what are the different, हम क्या करते हैं, physiotherapists क्या करते हैं, they still cannot differentiate. So but I tell you PMR is a teamwork. We need help of physiotherapists, occupational therapists, orthopedic processes, सबकी help चाहिए. But ये है कि मस्कुलर, इट डिपेंड्स ऑन द केसेस कि किसका रोल ज़्यादा है. जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर लो बैक एक, तो इस पर हम कुछ एक्सरसाइजेस की रोल बहुत ज़्यादा है. एक्सरसाइजेस प्ले अ ह्यूज रोल. देन इवन द फिजिकल मोडालिटीज़, द अल्ट्रासाउंड थेरेपी, द शॉक डायथमी, ये सब के रोल्स काफ़ी ज़्यादा है. सो इन केसेस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स तब फिजियोथेरेपिस्ट के रोल ज़्यादा है, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिजियाट्रिस्ट के रोल ज़्यादा है. बट इफ़ इट्स अ केस ऑफ
MPT में किसका रोल अभी ज़्यादा रहेगा फिर, बिकॉज यू नीड टू फिट अ न्यू आर्टिफिशियल लिम्ब टू द पेशेंट, तो तब ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, मोर इम्पॉर्टेंट रोल दैन द फिजियोथेरेपिस्ट. तो इस समय it's mainly a coordination between the physiatrist and the orthotist prosthetist in making the patient independent again. ठीक है. Then again, if the case is a child of cerebral palsy, तो जहाँ पे आपको बच्चा को पूरा अलग तरीके से ट्रेन करना है कि हाउ टू गेट अप, स्टैंड अप, वॉक, ये सब पूरा बच्चा ने कभी सीखा ही नहीं है. सो नाउ यू आर टीचिंग द बेबी हाउ टू वॉक, स्टैंड एंड नेक होल्ड करना, ये सब. तो इन सब में अगेन द फिजियोथेरेपिस्ट, द ऑर्थोटिस्ट प्रोसेस, दे टेक अ बैक सीट एंड द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल ज़्यादा हो जाता है. अगेन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का फ्रंट सीट कम्स इन द फ्रंट सीट. सो इट डिपेंड्स ऑन द केसेस कि किसका रोल ज़्यादा रहेगा कौन से कंडीशन पे. एंड द पर्सन हु इंटीग्रेट्स ऑल दिस द मेंबर्स, दैट इज़ द वर्क ऑफ द टीम लीडर का जो ड्यूटी है वो है द फिजियाट्रिस्ट, द PMR डॉक्टर. तो दैट्स व्हाट वी बेसिकली डू कि वी आइडेंटिफाई कि ये कंडीशन पे दिस हैज़ टू बी गिवन. ये कंडीशन जैसे कि CP बच्चा आ गया, CP बच्चा पे इनिशियली यू वे टीचिंग द बच्चा हाउ टू नेक होल्डिंग कैसे करना है, हाउ टू सिट एंड हाउ टू स्टैंड. तो उस समय यू रोल वॉज प्लेड मेनली बाय द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट सम पार्ट. But you find that a child finally can stand and he started walking, but you notice that कि उनके मसल्स जो इतना स्पास्टिक है कि फुट जो है वो इक्वाइनस पे चला गया. तो अभी इन दिस कंडीशन वी नाउ अंडरस्टैंड कि अभी तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस स्पास्टिक लिम्स सो दैट द एंकल जॉइंट कैन बी ब्रॉट टू न्यूट्रल पोजिशन. तो इस कंडीशन पे नाउ वी द PMR डॉक्टर्स वी आइडेंटिफाई कि इस कंडीशन पे बिफोर इट गेट्स वर्स वी हैव टू गिव समथिंग एन ऑर्थोसिस या फिर एक इंजेक्शन देना है टू मेक थिंग्स बेटर एंड मेक द चाइल्ड वर्क प्रॉपरली. तो इस पे ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस का रोल हैज़ टू कम इन द सीन. तो ये डिसाइडेड बाय द PMR डॉक्टर्स. ठीक है. सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द केसेस एंड द सिचुएशन, द सिनेरियो कि किसका रोल किस में ज़्यादा होता है. बट द पर्सन हु इंटीग्रेट्स ऑल द मेंबर्स is the team leader, who is the PMR doctor, which is also known as physiatrist. So after MD PMR, what next? So after you complete your MD in PMR, you can go for अभी एक DM, पहले DM pen medicine होता था. अभी since the last few years they have removed PMR from DM pen medicine. तो अभी DM इट्स ओनली पॉसिबल इन जेनेटिक मेडिसिन. अभी इट्स DM आप उस पर कर सकते हो. दैन फेलोशिप्स बहुत होते, फेलोशिप्स है लाइक फेलोशिप इन पेन मेडिसिन, फेलोशिप इन न्यूरो रिहैबिलिटेशन, फेलोशिप इन सर्जिकल रिहैबिलिटेशन या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़, पैलिएटिव मेडिसिन. ये सब अभी यू कैन परस्यू आफ्टर you complete your MD in PMR. Also one thing that जो PMR डॉक्टर्स करते हैं, वन इज़ द डिसेबिलिटी इवेलुएशन. जो PWD कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो जाते हैं इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स, वो वी इवेलुएट अगेन कि वेदर सही में वो लोग जो परसेंटेज के साथ वो लोग आए हैं, डज इट मैच और नॉट, वेदर दे रीच द बेंच मार्क डिसेबिलिटी परसेंटेज और नॉट, वो हम चेक करते हैं. दैट इज़ अनदर ड्यूटी ऑफ अ PMR डॉक्टर फिजियाट्रिस्ट. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, देन यू कैन कमेंट. ठीक है. बाय.